another exam, another paper leak. This time we're talking about Maharashtra's TET, which is Teachers Eligibility Test, which has been hit by a major paper leak allegation just a day before the exam. The TET exam was scheduled for Sunday, June 28th, and it has now been cancelled after police reportedly recovered a leaked paper from Thane. For lakhs of teaching aspirants, this is another shock after the NEET controversy, and it raises one central question. Why are India's competitive exams repeatedly failing the trust test? The scale of this cancellation is massive, viewers, because more than 4,28,000 candidates had registered for the Maharashtra TET exam, and Pune alone had the highest number of candidates with over 45,000 aspirants. And these are not just numbers, these are candidates who prepared for months, arranged travels, spent a lot of money and waited for a fair chance. But now, just before the exam, their future has been thrown into uncertainty. And what makes this case even more serious is the police input, because sources suggest the police received information that the TET paper was allegedly being sold. A trap was then laid, then the suspected leaked paper was recovered, and some people have reportedly been detained as well. But the big question now is not just who sold the paper, but where did it come from, who had access to it, and how deep does this paper leak mafia go? This is not the first time Maharashtra TET has come under a cloud. Earlier too, the exam had faced serious scam allegations, including claims that some candidates were given excessive marks. Now, with another leak allegation, the anger among students, teachers and citizens is very understandable, because this is not just an exam cancellation. This is a crisis of credibility in the recruitment system. And we have some reactions coming in. Let's play that out. नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने के मामले महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई। आज ठाणे में टीटी का पेपर फूटने से फिर एक बार बच्चों में बड़ी निराशा निर्माण हुई है। ये जो बच्चे कोई भी एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन रात उनको साथ देते हैं, और ये सब होने के बाद जब एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ये पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती है, तो हमें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्य में टीटी का पेपर लीक होना ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकती। 28 जून 2026 को यानी कल होने वाली थी ये जो ठाणे में हुआ है प्रकार, इसकी वजह से हमने पोस्टपोन की है। इस परीक्षा के लिए 1728 केंद्र थे, सेंटर्स थे। इस सेंटर्स पे पूरे महाराष्ट्र में 6,125 स्टूडेंट्स थे जो इस परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले थे। We have my colleague Jaiprakash Singh joining me on the phone line. Jaiprakash, a very good afternoon to you. What exactly happened? क्या हुआ था? और एग्जाम कैंसिल होने के 24 आवर्स पहले पेपर लीक हुआ है। अभी तक पुलिस ने कहां तक जांच करी है और कितने लोगों को गिरफ्तार करी है? देखिए, पूरे मामले में 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2026, ये जो परीक्षा है ये स्थगित हो गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 28 जून यानी कल ये एग्जाम होने वाला था, और इसके पहले ही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद को जानकारी मिली कि ठाणे रूरल में भिवंडी इलाके में कुछ लोग पेपर लीक कर रहे हैं, और जब पेपर का मिलान किया गया तो ये पेपर कल होने वाले एग्जाम के पेपर के बिल्कुल सेम टू सेम पेपर था, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने ये पेपर जो है MECE ने इसको रद्द कर दिया है, और 3 लोग इस पूरे मामले में अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है कि टीटी का ये पेपर कहां से लीक हुआ और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। प्रकाश जी, इससे कितने एस्पिरेंट्स के ऊपर इफेक्ट हुआ है, और अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है एग्जामिनेशन के बारे में? देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 2 से 2.5 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं उन पर इसका असर होगा। हालांकि अभी जो ठीक ठाक आंकड़ा है वो जो टीटी पेपर लीक घोटाले के बाद ये करीब 1728 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, और इस परीक्षा केंद्र पर ये एग्जाम पूरा होना था। लेकिन इस पूरे मामले में कितने जो स्टूडेंट्स हैं इसका सही आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी जो है
खबर है, क्योंकि नीट एग्जाम घोटाले के बाद, नीट पेपर लीक घोटाले के बाद ये दूसरा पेपर लीक घोटाला है। विपक्ष इससे काफी आक्रामक है और सोमवार को यानी कि मंडे को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उस वक्त भी विपक्ष काफी हंगामा करने वाला है। प्रकाश जी, ये जो 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, आर दे पार्ट ऑफ अ बिगर पेपर लीक माफिया? बिल्कुल, देखिए ये 3 लोग अरेस्ट जो हुए हैं, ये कौन लोग हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है और इनके पास ये पेपर कहाँ से आया था, भिवंडी में ये पेपर क्यों लेकर गए थे, क्या भिवंडी से ये पेपर ठाणे और मुंबई के सेंटर पर या स्टूडेंट्स को पहुंचाया जा रहा था, कितने स्टूडेंट्स को ये पेपर पहुंचाया गया है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, इन तमाम चीजों की तहकीकात जो है वो की जा रही है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Well, that was my colleague summing up what has happened so far. 3 people have been detained by the police. Questioning is underway to unearth, the primary source of the paper leak.